नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुनाफे की मंडी में। मैं हूं विश्व मोहन और हमारी सहयोगी तृप्ति उपाध्याय भी स्टूडियो में मौजूद हैं। शुरुआत कर लेते हैं मुनाफे की मंडी की और बात करते हैं सबसे पहले चांदी की, क्योंकि सिल्वर पर आज हमारे साथ एक खास मेहमान है। सिल्वर इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट माइकल डी रियांजो मौजूद हैं। क्योंकि सिल्वर में जिस तरह की तेजी दिख रही है उसके बाद से लगातार अब ये सवाल उठ रहे हैं, क्या ये रैली कब तक चलेगी, क्यों इतनी तेजी दिख रही है और आगे क्या कुछ इस मार्केट में हो सकता है। So thank you so much, Mr. Di Rianjo, because silver is witnessing a strong rally driven by a combination of different factors. What impact US attack on Venezuela have on silver markets? What's your assessment on this development, Mr. Di Rianjo? Well, Venezuela is not even a top 20 silver producing country. All right. So there's not a lot of silver there. There are other minerals. And my suspicion is Venezuela may be in the top 30, maybe 40 with respect to silver mining countries. But according to our World Silver Survey, they're not even a top 20. Now, a lot is uncertain right now about what what ultimately will play out in Venezuela. Does the United States go in with its domestic oil companies and extract oil? Could that cause disruptions in the metals market down the road? Potentially, yes. Yeah, it's true that Venezuela is not a major miner, but given Venezuela's geographical location, do you see any supply side risk emerging from this situation? Yeah, we're facing severe supply side issues right now, even before Venezuela even happened. I mean, we're only looking at a very flat rate of silver production from mines this year, or last year, I should say, in 2025. And, we have increased demand. So we have a structural market deficit. So yes, this could add added pressure to the supply side of the equation. One more thing, world's two largest economies, US and China, they both are holding the silver and similar trend visible elsewhere as well. What could be the major impact on silver market because of this Chinese and US issues? Right, and that's a great question. Look, on January 1, China initiated export controls on silver leaving the country. We haven't seen an impact yet with respect to the market. It is tighter, all right. The free floatability of silver at the LBMA is not critical, but it's getting interesting. Let's put it that way. They have roughly 700 million ounces of silver, of which 75% is dedicated to exchange traded products. So as this float dwindles, it could be stressful on the market. Okay, so I wanted to know, because discussion around silver's industrial demand is very high. It has been intensified in last few years. Do you think is there any real demand from industry that has rapidly grown up in last few quarters? What's your assessment? What's your data that suggests for silver industrial demand, sir? Well, the fact of the matter is silver is trading as it should. Okay, it's both a precious metal and as an industrial metal, and many investors look at the duality of that complex with silver. So on the industrial side, we continue to see larger solar installations increasing across the world. We're seeing silver used, of course, in those applications. We're seeing the drive for EV market and the infrastructure that supports it moving fast through Europe and China, and to a certain degree in the United States. But quite frankly, you got to look at some of these new technologies, data centers, which are use chips to power AI. I mean, they've grown by over 5,000% in just the last few years. Okay, there are many sectors that's forcing the demand and helping the silver to intensify this rally. So what could be the key driver for silver in 2026? And which segment is likely to lead the rally, sir? Well, we haven't put out our forecast for 2026 yet, but just off the top of my head, demand will remain strong, especially investment demand.
we had more silver going into ETPs through the end of July last year than all of 2024. And that is continuing today. I mean, the silver price is being propped up by investors who are looking to make a play against a weaker US dollar in favor of lower interest rates, these geopolitical issues across the world, and of course, the trade supply issue with respect to potential tariffs in the United States on silver, as it was just placed on the critical minerals list last November. Definitely, these two economies are helping the silver. Can the strong rally that we saw in 2025, because 180% strong gain we saw in silver prices, that rally could continue in 2026 as well? I think you're asking if this phenomena can continue into 2026. And if that's what you're asking, well, it already has, all right? The silver price is at record highs even as we speak today. So look nothing has fallen off the platform of silver just because the calendar changed. The fundamentals remain strong. We're in a structural market deficit. We projected anywhere between 95 and 100 million ounces in 2025. We'll see what that number ended up to be. But when you look at the last 5 years of that structural market deficit and you add it all up, you get to about 850, 860 million ounces, which is relatively equal to 1 year's of mine supply. Last year, there was a news that Russian central banks, Saudi central bank, they are also going to start the silver buying for their gold, for their reserve. So central banks are they are actively buying silver, or only considering to buy in 2026 or in coming years? Not that I'm aware of. And the Russian issue was issued in a press release near the end of 2024. And to my knowledge, they have not acquired any silver through their central bank. The Saudi Arabia issue is different in that they are investing into what's known as PSLV, which is the Sprott ETP. It has access to silver. It's backed by silver, but they're not acquiring actual silver bullion. And I don't know of any other banks, central banks, that are looking to put silver on their balance sheet, but we'd be welcome if they did. Okay, thank you so much. It's always good to have you for our show, sir. Thank you so much once again, and Happy New Year to you and your team and your family. Thank you so much, sir. तो ये थे सिल्वर इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट माइकल डी रियांजो, जिनसे आपने सुना सिल्वर के मार्केट की इनसाइड स्टोरी क्या चल रहा है। तो इन्होंने कहा कि सिल्वर का जो मार्केट है वो लगातार डेफिसिट में है, स्ट्रक्चरल डेफिसिट है, और सेंट्रल बैंकों की बाइंग को लेकर उन्होंने यही कहा कि अभी तक इस तरह की बाइंग की कोई रिपोर्ट उनके पास अभी नहीं है। हालांकि कंसिडरेशन स्थिति में ज़रूर है, और सऊदी और रूस के सेंट्रल बैंक से इस तरह की खबर आ रही थी। हमारे साथ दो और मेहमान हैं, उनसे समझते हैं चांदी की स्टोरी क्या है। नवनीत दमानी है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से, और दिनेश सोमानी है, फाउंडर है प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से। नवनीत जी, आप लोगों की भी रिपोर्ट आ चुकी है 2026 की, आपने शेयर भी किया था। बताइए सर, चांदी को लेकर वो रिपोर्ट क्या कह रही है, क्या कुछ हो सकता है चांदी में आगे सर? विष्णुमोहन जी, हमने कल ही अपनी एनुअल रिपोर्ट जारी की है, रिव्यू 2025 एंड प्रीव्यू 2026, जहां पे हमें लग रहा है कि चांदी अभी भी एक अच्छे मोमेंटम के साथ ट्रेड कर सकती है, बट जो मोमेंटम है हमें लगता है कि साल 2026 के सेकंड हाफ में आना चाहिए। अभी जो हम देख रहे हैं वो थोड़ा सा एक्सूबरेंस, थोड़ा सा कैरिड अवे वाला जोन है, और हम यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस स्टांस अपना रहे हैं, बिकॉज जिस तरह से हम 8 से 10,000 पॉइंट का मोमेंटम देख रहे हैं एवरी ऑल्टरनेट चांदी में, ये रिटेल निवेशकों के इन्वेस्टमेंट के लिए अब नहीं रहा है। एंड जो बल्क बाइंग करके या जो स्टैगर्ड वे में बाइंग करना चाहता है उसके लिए एक बेहतर विकल्प है। ओवरऑल चांदी की सिचुएशन पिछले साल से बेहतर हुई है, बट धीरे धीरे हमें देखने लगेगा कि ऑल्टरनेटिव्स के तरफ मार्केट मूव करने लगेगा, बिकॉज प्राइसेस करीब करीब 200% 2 साल में बढ़ गए हैं। और उसके साथ साथ ये भी देखने वाली चीज रहेगी कि ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन या जो फाइनेंशियलाइजेशन चल रहा है, ये मौजूदा भाव पे $80 के भाव पे भी किस स्पीड में परकोलेट करेगा। बिकॉज अभी जो हम देख रहे हैं वो एक थोड़ा सा फोमो टाइप ऑफ बाइंग है, थोड़ा सा मिस आउट वाला बाइंग है, और थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच भी लोग ले रहे हैं कि अब 2.5 लाख रुपया हो गया, यहाँ पर निवेश करना है कि नहीं करना है, यहाँ से बेहतर विकल्प और अवेलेबल है क्या।
तो ओवरऑल बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं जो हमें लग रहा है कि इस रिपोर्ट के माध्यम से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं और एक कॉशियस अप्रोच ले रहे हैं। अपसाइड पोटेंशियल अभी भी है, 90-95 डॉलर तक जा सकता है, बट वो सेकंड हाफ ऑफ 2026 में जाए ये ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी रहेगी रेदर देन ये जो करंट मोमेंटम है ये इसी स्पीड में चला जाए। बिकॉज जो झटके आएंगे वो जो हमने दिसंबर 26-5 में देखे कि 20 से 25,000 30,000 पॉइंट के झटके आएंगे, वो रिटेल निवेशकों को मार्केट से थोड़ा सा बाहर कर देते हैं। तो थोड़ा सा एक कॉशियस अप्रोच लेते हुए तेजी बरकरार रखी है। कॉशियस अप्रोच रहेगा, लेकिन मोमेंटम अभी भी यहाँ पर बरकरार है चांदी के लिए। दिनेश सर, आपसे पूछना चाहूँगी, देखिए सुबह हमने देखा था अच्छे लेवल्स और रिकॉर्ड रैली चांदी में नजर आई, फिर से $82 के ऊपर चली गई थी, लेकिन फिलहाल थोड़ी मुनाफा वसूली हावी हो रही है। MCX पर भी 1.5% की गिरावट के आसपास कारोबार है, और कॉमिक्स की बात करें तो यहाँ पर भी $79 पर चांदी फिलहाल कारोबार कर रही है। आप इस मुनाफा वसूली को किस तरह से देख रहे हैं? क्या यहाँ पर ट्रेड लेने का मौका बनता है या अभी और थोड़ा रुक जाना चाहिए और गिरावट आना बाकी है अभी? कल का सत्र अगर हम देखते हैं तो करीब करीब 12-13 हजार रुपए का मूवमेंट मार्केट में आया है। ऊपर में ऑलमोस्ट 2,59,000 के स्तर उसने छुए, और बहुत स्वाभाविक है कि इतनी बड़ी जब रैली आती है मार्केट में तो मुनाफा वसूली निश्चित तौर से आती है। इंटरनेशनल कॉमिक्स में भी हमने देखा कि $82-81 के पिछले बार वहां से घटकर $70-71 के आसपास के लेवल्स हमने आते हुए देखे हैं। तो इन लेवल पर कॉशियस मोड रखना बिल्कुल स्वाभाविक है और रखना भी चाहिए। बट मुझे लगता है कि अब जो भी बाइंग जिसकी पड़ी है आज इंट्राडे के लिहाज से 2,52,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके इनकी बाइंग बनी रहनी चाहिए। अगर मोमेंटम आता तो दोबारा मुझे लगता है कि 2,60,000 का लेवल आज ही दिखा सकता है, बट अब स्टॉप लॉस 2,52,000 का निश्चित तौर से उसमें रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपको 2,54,200 के लेवल पर खरीदारी करनी है। 2,58,500 के टारगेट है, लेकिन एक स्ट्रिक्ट एसएल लगाना होगा 2,52,500 रुपए का। सोने पर भी बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आज मुनाफा वसूली सोने में भी हावी हो रही है। जिस तरह के जियोपॉलिटिकल टेंशंस यहाँ पर चल रहे हैं तो सेफ हेवन की डिमांड फिर से बढ़ गई है, और MCX पर फिलहाल 1,38,000 के लेवल पर सोना कारोबार कर रहा है। और कॉमिक्स की बात करें तो यहाँ पर भी आधे % की गिरावट है, लेकिन अच्छे लेवल्स हमने सोने में आज सुबह आते हुए देखे थे। क्या लगता है सोने में भी ये वक्त है कि यहाँ पर थोड़ी खरीदारी करके रख लेना चाहिए, आगे बड़े लेवल्स आते हुए नजर आएंगे? आपसे ही सवाल होगा दिनेश सर। 39,000 के स्तर इसने पार किए थे। ऊपर में 4490-95 के लेवल भी हमने देखे हैं, और वहां से आज दोबारा सारे मार्केट अक्रॉस देखते हो तो हम मुनाफा वसूली सब चौतरफा आ रही है। वेदर आप बेस मेटल्स देख लो या क्रूड देख लो या बुलियन देख लो, आई थिंक 1,37,800 ये स्टॉप लॉस होना चाहिए गोल्ड के बाइंग के लिए। 1,38,100 के आसपास बाय करे, 300 रुपए नीचे का उसमें स्टॉप लॉस रखे, दोबारा मुझे लगता है कि 1,38,800 के लेवल से दिखा सकता है। को लेकर आपकी ये राय आ गई है, लेकिन नवनीत जी आप लोगों की रिपोर्ट गोल्ड को लेकर क्या कह रही है? क्योंकि 2025 के बारे में तो बहुत सारी कहानियां आपने कही है, 2026 की कहानी किस तरह से फिट बैठ रही है, क्या कह रही है, कौन कौन से टारगेट दिखेंगे गोल्ड में? 2025 का स्टार्ट तो चांदी ही रहा है और गोल्ड ने साथ साथ उसे सपोर्ट किया 70-75% गेंस के साथ। बट हमें लगता है कि 2026 में रीअलाइनमेंट करना पड़ेगा अपने पोर्टफोलियो को, जहां पे चांदी से निवेश थोड़ा बहुत गोल्ड में डाइवर्सिफिकेशन देखने मिल सकेगा। बिकॉज हमें लगता है कि स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी अब यहाँ से गोल्ड में देखने मिलेगी। यहाँ से सेंट्रल बैंक भी ठीक ठाक काम करते रहेगी, बाइंग करते रहेगी, उसके साथ साथ डी-डॉलराइजेशन एक बड़ा मूव प्ले करेगा गोल्ड के अंदर। यूएस के जो आर्थिक स्थिति है वो किस तरह से अनफोल्ड होगी अगले 3-6 महीने में, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैसला रहेगा गोल्ड के प्राइस को डिराइव करने के लिए। और चौथा बड़ा मुझे लगता है फैक्टर रहेगा कि टैरिफ जो अभी तक पूरी तरह से अनवाइंड नहीं हुए वो उसके ऊपर कितनी अनिश्चितताएं बढ़े रहेगी। और 2025 में एक फैक्टर जो मिसिंग रहा है या जो थोड़ा सा स्लो रहा है वो जियोपॉलिटिकल टेंशन रहा है। बट हमने 2026 की शुरुआत ही एकदम बॉम्बास्ट होते हुए देखा है, जहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशन एस्केलेट होते हुए नजर आए। तो कुल मिला के निष्कर्ष यही है कि नीजर रिएक्शन, नीजर करेक्शन आते रहेंगे गोल्ड प्राइसेस में, जो कि प्राइसेस को करीब 4200 एंड 4050 डॉलर तक भी ला सकेंगे। बट इवेंचुअली साल के एंड तक आप $5,000 के आसपास की तैयारी कर लीजिए। यहाँ से करीब 15% का अपसाइड अभी भी गोल्ड में देखने मिल सकता है। इस साल भी कंटिन्यू होगी, हो सकता है कि कुछ मॉडरेशन दिखे, उस तरह की तेजी ना दिखे। एक सवाल मेटल्स पे लेकर हम ब्रेक लेंगे, क्योंकि मेटल्स की तेजी बहुत ज्यादा दिख रही है। नवनीत जी, मेटल्स को लेकर क्या राय आ रही है?
वेल मेटल में हम काफी टाइम से बुलिश रहे हैं। कॉपर ने एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया है, पिछले साल 42% के आसपास का रन दिया है। और इस साल जो माइनर मेटल्स है, जिंक, एल्यूमिनियम, लेड, निकल, जो नहीं पार्टिसिपेट कर पाए थे पिछले साल, उन्होंने भी इस मोमेंटम को पॉजिटिवली पार्टिसिपेट करते हुए नजर आए। कल के सत्र में भी हमने निकल को करीब 9% बढ़ते हुए देखा है, और निकल के साथ लेड जो है वो, जो कि एकदम सुस्त कारोबार कर रहा था पिछले 8 से 10 महीने में, उसमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखा है और 5 से 6% का इजाफा देखा है। तो ओवरऑल बायस पूरे मेटल कॉम्प्लेक्स में पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है, बट सिलेक्टिवली बाइंग करनी है, बिकॉज कॉपर अभी भी इस साल भी आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा, फॉलोड बाय जिंक एंड एल्यूमिनियम। बाकी दोनों कमोडिटी यानी निकल और लेड में इतना बड़ा इंक्रीमेंटल गेन या इतना बड़े फंडामेंटल चेंजेस नहीं है जो कि बहुत बड़ा प्राइस मोमेंटम ला सके। तो फर्स्ट हमारा बेट रहेगा कि कॉपर में अभी भी तेजी कंटिन्यू रखे $14,500 के लिए। सेकेंडली हमें लगता है कि 3500 $3500 के लिए जिंक में अभी भी पोजिशनली इन्वेस्ट करके रखिए और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपनाइए। और एल्यूमिनियम इस साल का सरप्राइज पैक रह सकता है, जो कि करीब करीब $3500 तक जा सकता है यहाँ पर भी, तो उसमें भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी कंटिन्यू रखनी चाहिए। सरप्राइज की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे रह सकता है और बाकी मेटल्स भी बाई ऑन डिप्स के साथ यहां पर काम कर सकते हैं। 2026 को लेकर ये मोतीलाल ओसवाल की और नवनीत जी की टीम की रिपोर्ट है। चलिए, लेकिन आज आपको क्या ब्रेक के बाद आपका स्वागत और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। सुमानी जी, आज मेटल्स काफी तेज है। लेड को देखिए, एक लंबे समय तक कंसोलिडेट ही कर रहा था, अब यहां पर क्या बड़े ब्रेकआउट की तैयारी चल रही है? क्या बड़ी तेजी दिख रही है लेड में भी क्या? बिल्कुल यशोमोहन जी, अक्रॉस द बोर्ड सारे बेस मेटल्स मुझे लगता है कि अच्छी खासी तेजी इन्होंने दिखाई है। जो एल्यूमिनियम पीछे चल रहा था 292 295 के लेवल में, वो भी 317 के लेवल के आसपास आ गया। जिंक जो 301 302 के आसपास चल रहा था, वो भी 315 16 के आसपास आ गया है। तो लेड ने भी निश्चित तौर से एक अच्छी छलांग ली है। 192 से 197 198 के लेवल्स आए हैं। निकल में भी कल हमने देखा कि एलएमई में करीब करीब 9 से 10% की तेजी आई है। तो अक्रॉस द बोर्ड सारे बेस मेटल्स में एक ब्रॉड बेस बाइंग है, बट मुझे लगता है कुछ ना कुछ हद तक एक बार रुकावट जरूर बन सकती है। प्रोबेबली अगर मैं कॉपर की बात करूं तो मुझे लगता है कि 1345 एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। अब फ्रेश बाइंग कुछ अगर करनी है तो मुझे लगता है कि 1345 क्रॉस करने के बाद ही बाइंग करनी चाहिए। उसके बाद जो तुरंत टारगेट हमें देखने मिलेंगे वो मिलेंगे 1371 1404 के लेवल्स, और वहां पे हम 1325 की स्टॉप लॉस लगाते हैं। वहीं पर ये एल्यूमिनियम मुझे लगता है कि करीब यहां से 1307 1308 के लेवल्स आते हैं, तो बाय करना चाहिए। 1303 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 1320 का टारगेट देखने मिल सकता है। इंट्राडे में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, कॉल्स मोस्टली पोजिशनल बेसिस पर ही लेना चाहिए। एनालिसिस भी बहुत डिफिकल्ट हो गया और ट्रेडिंग उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट होती जा रही है। यहाँ पर कॉपर पे आपने रणनीति सुझाई है और लेवल्स भी लगातार हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, उन लेवल्स का ध्यान ज़रूर से रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और एक कच्चे तेल पर राय ले लेते हैं। नवनीत जी, देखिए कच्चे तेल पर अब प्रेशर यहाँ पर दिखने लगा है, ओवर सप्लाई की चिंताएं बढ़ गई है। जिस तरह से यूएस वेनेजुएला के बीच टेंशन बढ़ता जा रहा है, अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा है कि यूएस को यहाँ पर 50 मिलियन बैरल्स का ऑयल अब यूएस को देना होगा। और एमसीएक्स पर देखिए आज जो करीब 3% की गिरावट के साथ गिरी हुई कमोडिटी है उसमें कच्चा तेल है, और कॉमिक्स पर भी यहाँ पर गिरावट नजर आ रही है। क्या लगता है आपको आगे जाकर कच्चे तेल में कोई अच्छी रैली नजर आएगी? ये जो गिरावट है, अगर यूएस वेनेजुएला का टेंशन खत्म होता है तो यहाँ पर हम अच्छे लेवल्स आते हुए देख सकते हैं। कच्चे तेल के लिए क्या रणनीति होगी? वेल यूएस वेनेजुएला ट्रेड टेंशन आइडियली एक नेगेटिव सिचुएशन ही है अगर देखा जाए तो पूरे एनर्जी पैक के लिए, बिकॉज वेनेजुएला का जो प्रोडक्शन है वो उनके पास बैरल जो है या जो क्वांटिटी ऑफ रिजर्व्स है वो बहुत है, बट जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो 0.8-0.9% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन में ही उनका कंट्रीब्यूशन है। और 10 साल में जो 4% ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन हुआ करता था वो 0.9% के आसपास आ चुका है। तो अगर यूएस कहीं पे इंटरमीडिएट करता है और प्रोडक्शन को बढ़ाने में मदद करता है और वर्ल्ड प्रोडक्शन वापस 2 से 3% या 4% तक भी उनका कंट्रीब्यूशन चले जाता है, तो वो एक नेगेटिव सेंटीमेंट ही होगा मार्केट के लिए, जिसकी वजह से हमने कल के सत्र में भी छोटी मोटी पॉजिटिविटी के बाद वापस एक सेशन में दबाव आते हुए देख रहे हैं प्राइसेस को। मेरे हिसाब से जब तक $60 के नीचे है प्राइसिस में थोड़ा सा दबाव रह सकता है, और $54 WTI यहाँ से भी छू सकता है, जो कि डोमेस्टिक स्तरों में 4900 रुपीज का लेवल रहेगा। तो यहाँ पर भी सेल ऑन रैली का ही स्टांस रहेगा और 5100 5150 के बीच सेल करिए। 50 to 40 आपका स्टॉप लॉस रहेगा एंड 4900 तक के टारगेट आपको कुछ दिनों में देखने मिल सकते हैं। तेल पर राय। दिनेश सर, आपको क्या लगता है कच्चे तेल में क्या रणनीति बनाना चाहिए? साथ ही एनजी को देखिए, यहाँ पर अच्छी रैली आज दिखा रहा है, 2.5% से ज्यादा की तेजी, और कॉमिक्स पर तो करीब 5% की तेजी यहाँ पर नजर आ रही है। क्या कोई कॉल एनजी में लेना चाहिए इस वक्त? जी बिल्कुल, क्रूड जैसे नवनीत ने कहा कि निरंतर बिकवाली का ही दौर जारी है। 5100 के आसपास क्रूड में बिकवाली बन सकती है। डाउनसाइड 5020 4950 के लेवल से दिखा सकता है।
और करीब करीब मुझे लगता है कि 5160 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। एनजी मुझे लगता है शॉर्ट टर्म कुछ ना कुछ रिकवरी जरूर आ सकती है, काफी ओवरसोल्ड कंडीशन है। 310 312 के दरमियान एनजी बाय करना चाहिए। 303 के स्टॉप लॉस से 329 का अपसाइड टारगेट मुझे नजर आता है। एनजी में मुझे पुलबैक रैलीज नजर आती है, जबकि क्रूड में एक अच्छी मंदी नजर आती है। तो एनजी में आपको पुल बैक रैली और नाइमेक्स पर दिख भी रही है उस तरह की तेजी 4% से ज़्यादा की, और यहाँ पर भी घरेलू बाजार में भी तेजी दिख रही है और क्रूड में यहाँ पर नरमी दिख रही है आपको। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, और इसी नोट पर मुनाफे की मंडी को यहीं समेटेंगे। मुझे और तृप्ति को भी दीजिए इजाज़त। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके लिए वायदा बाजार का पूरा